Good day students. Today we will discuss about multi-way search trees. In the previous lectures we have discussed about binary search trees. In a binary search tree node there is one value and two pointers for the subtrees, one for the left subtree and one for the right subtree. In a multi-way search trees, we can also say multi-way search tree as m-way search tree. So in multi-way search trees, there are m-1 keys and m subtrees of a node. So these multi-way search trees will help us in understanding the future two topics, that is B tree and B plus trees. These both trees, B tree and B plus tree, are multi-way search trees that are used for indexing the big files. चलिए देखते हैं कि ये मल्टी-वे सर्च ट्री क्या है. So a binary search tree contains one value and two pointers, left and the right, which point to the nodes left and right subtrees respectively. That I have already told you what is the meaning of binary search tree. The same concept is used in a m-way search tree, which has m-1 values per node and m subtrees. So in every node of a m-way search tree or a multi-way search tree, there may be maximum m-1 values and maximum m subtrees. That is, minimum is 0, maximum is m-1 values. Similarly, subtrees, there is, if there is a 1 value, then it is 2. So agar 0 hai to 0. So 0 to maximum m subtrees. M is called the degree of the tree. M को हम क्या कहते हैं? Degree कहते हैं. This M is called the degree of the tree. In a binary search tree, the value of M is equal to 2. It means the degree of binary search tree is 2. So it has one value and two subtrees. In other words, every internal node of an m-way search tree consists of pointers. Every internal node. Two types of nodes are there, internal and external. External nodes are called leaves. And internal is that node that have some subtrees. So an internal node of an m-way search tree consists of pointers to m subtrees and m-1 keys. M subtrees and m-1 keys. So मैंने अभी आपको बताया मैक्सिमम कीज कितनी हो सकती हैं, m-1. मैक्सिमम सबट्री कितने हो सकते हैं, m. मिनिमम कीज कितनी हो सकती हैं, 0. ठीक होगी जी बात, कोई नहीं है वैल्यू. और मिनिमम सबट्रीज भी नेचुरली 0 अगर नहीं है तो. चलिए, वेयर m इज ग्रेटर देन 2, जहां m की वैल्यू क्या होगी, 2 से बड़ी होगी. 2 से क्या होगी, m की वैल्यू 2 से बड़ी होगी. अब 2 यहाँ पुट कर दोगे, 2 - 1 1, और यहाँ नेचुरली 2 हो जाएगा. चलिए, ये आपके सामने एक नोड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, m-वे सर्च ट्री नोड का. सो ये जो फर्स्ट है, ये हमारे 0th ट्री को पॉइंट कर रहा है. K0 हमारी पहली की है, ये उसका लेफ्ट सब ट्री है, ये उसके राइट सब ट्री को इंडिकेट कर रहा है. ये हमारी K1 सेकंड की आ गई. P1 K1 के लेफ्ट सब ट्री को इंडिकेट कर रहा है. P2
K1 के राइट सब ट्री को इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली ये तीसरी की आ गई, P2 K2 के लेफ्ट सब ट्री को इंडिकेट कर रहा है, एंड सो ऑन अप टू P। सो दिस इज the structure of a single node of a M-way search tree. In the structure shown, P0, P1, P2, Pn are pointers to the nodes subtrees, and K0, K1, K2 up to Kn-1 are the key values of the node. So K1, K0, K1 up to Kn-1 क्या है जी, वो कीज हैं, और जो P0, P1, P2 ये क्या है, हमारी नोड के सब ट्रीज के पॉइंटर्स। ऑल द की वैल्यूज आर स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये बात नोट करने वाली है, जितनी भी की वैल्यूज हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। यानी कि के की वैल्यू अगर ये 2 है तो ये 2 से बड़ी होगी, ये इससे K2 K1 से बड़ी होगी, एंड सो that is Ki is less than Ki plus 1 for 0 less than equal to I less than equal to n minus 2। ठीक होगी जी बात। तो I की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी। नाउ in a M-way search tree, it is not compulsory that every node has exactly m minus 1 values and m subtrees। ये देख लीजिए बात, ठीक होगी जी बात। M-way सर्च ट्री के अंदर कोई कंपलसरी नहीं है कि एग्जैक्टली m-1 वैल्यू हो या m सॉर्टेड। द नोड कैन हैव एनीवेयर फ्रॉम 1 to m-1 वैल्यूज, एक से लेके m-1 वैल्यूज तक कितनी भी हो सकती हैं, एंड द नंबर ऑफ सब ट्रीज कैन वेरी फ्रॉम 0 फॉर ए लीफ नोड टू i प्लस, जितनी कीज होंगी की से एक ज्यादा। ठीक होगी जी बात, जितनी कीज होंगी की से एक ज्यादा। I प्लस वेयर I इज द नंबर ऑफ की वैल्यूज इन द नोड। सो जो वैल्यूज हैं वो 1 से m-1 के बीच में की हो सकती हैं। ठीक होगी जी बात। और जो सब ट्रीज हैं वो 0 से लेके I प्लस 1 तक हो सकते हैं, वेयर I इज द नंबर ऑफ की वैल्यूज इन द नोड। M इज ए फिक्स्ड अपर लिमिट। M क्या है, फिक्स्ड अपर लिमिट है, दैट डिफाइंस हाउ मेनी की वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड इन द। M हमारा अपर लिमिट है, जैसे बाइनरी के अंदर अपर लिमिट 2 है, MC तरीके से M के अंदर हम फिक्स कर लेते हैं 3, 5, 10, कितनी भी हो सकती है। ठीक होगी जी बात। वो जितना भी आप डेंस ट्री बनाना चाहो तो उसके हिसाब से आप M की वैल्यू अपर लिमिट सेट कर सकते हो। सो M अपर लिमिट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इतनी कीज या इतने सब ट्रीज हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता कंसिडर द M-way ट्री, ये हमें जो दिखाया गया है ये M-way ट्री है। M की वैल्यू इसके अंदर 3 है, चेक कर लीजिए। M की वैल्यू 3 है, मतलब हर एक नोड के 3 सब ट्री हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3। यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, 1 सब ट्री, 2 सब ट्री, 3 सब ट्री, यानी कि ये पॉइंटर हैं कभी 1, 2, 3, 1, 2, 3, सिमिलर 1, 2, 3, एक एग्जाम्पल है। तो हमने दिखा दिया, जब आप ट्री बनाना शुरू करो कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके 3 हो। सो ए नोड कैन स्टोर ए मैक्सिमम ऑफ 2 की वैल्यूज, सबके अंदर 2 की वैल्यूज है, एंड कैन कंटेन पॉइंटर्स टू 3 सब ट्रीज। 2 की वैल्यूज हैं हर एक नोड के अंदर, 3 सब हैं, सो इट इज ए 3-वे सर्च ट्री। तो ये कौन सा है जी, ये 3-वे सर्च ट्री है, मैक्सिमम 3 है तो 3-वे सर्च ट्री। इन जनरली जब हम बी ट्री और बी प्लस ट्री देखेंगे तो जो लीव्स हैं वो सब के सब सेम लेवल पे होंगे। लीव्स किस लेवल पे होंगे, सेम लेवल पे होंगे। यहाँ पे लेवल डिफरेंट है, ये जो ये लीव है ये h-1 पे है, ये जो लीव्स हैं ये h हाइट पे है, ये h हाइट पे यानी मैक्सिमम हाइट पे, ये उससे कम हाइट पे। सो बी ट्री और बी प्लस ट्री के अंदर ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे जो लीव्स हैं वो सारे के सारे सेम लेवल पे होंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं M-way सर्च ट्री की। The key values in the subtree, the key values in the subtree pointed by P0 are less than the key value K0. So P0 subtree द्वारा जो वैल्यूज पॉइंट की जा रही हैं, की वैल्यूज पॉइंट की जा रही हैं, वो K0 से छोटी होंगी। सिमिलरली
all the key values in the subtree pointed by P1 are less than K1, और जो P1 द्वारा सब ट्री द्वारा वैल्यूज पॉइंट की जा रही है नेचुरली वो K1 वैल्यू से कम होंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से अगर मैं P1 को K0 से कंपेयर करूं तो P1 ट्री द्वारा जो वैल्यूज पॉइंट की जा रही है, की वैल्यूज पॉइंट की जा रही हैं, वो K0 से बड़ी होंगी। ठीक होगी जी बात। चलिए, द जनरलाइज्ड रूल इज दैट all key values in the subtree pointed by Pi are less than Ki। तो जनरलाइज रूल क्या है कि जितनी भी की वैल्यूज हैं जो सब ट्री Pi द्वारा पॉइंट की जा रही हैं वो Ki से छोटी होंगी, वेयर i लाइज बिटवीन 0 to n माइनस 1। i किसके बीच में लाई कर रही है? 0 से लेके n माइनस 1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक होगी जी बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। द की वैल्यूज इन द सब ट्री पॉइंटेड बाय P1 आर ग्रेटर देन द की वैल्यू ऑफ K0। यह मैंने अभी बताया था। P1 द्वारा जो की वैल्यू P1 सब ट्री द्वारा जो की वैल्यू पॉइंट की जा रही हैं वो K0 से बड़ी होंगी। सिमिलरली ऑल द की वैल्यूज इन द सब ट्री pointed by P2 are greater than K1, so on and इसी तरीके से बाकियों के लिए भी यही रूल एप्लीकेबल है। द जनरलाइज्ड रूल इज दैट all the key values in the subtree pointed by Pi are greater than Ki minus 1। so Pi सब ट्री द्वारा जो की वैल्यू पॉइंट की जा रही हैं वो Ki माइनस 1 की से बड़ी होंगी, वेयर i लाइज बिटवीन 0 to n माइनस 1। वही इन एम वे सर्च ट्री एवरी सब ट्री इज आल्सो एन एम वे सर्च ट्री। तो हर एक जो एम वे सर्च ट्री के अंदर जो हर एक सब ट्री होगा एम वे सर्च ट्री का वो भी एम वे सर्च ट्री होगा, और उसके ऊपर भी सेम रूल एप्लीकेबल होते होंगे जो मेन सब ट्री के मेन ट्री एम वे सर्च ट्री के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं। ठीक है जी। तो ये बात हुई हमारी एम वे सर्च ट्री। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।